Hello, aspirants. Welcome to the Anthropology online class. Today, our topic is women political empowerment. And this is a very important topic for civil service mains, just not for anthropology, but as a general mains and ICDS descriptive pattern exams and also state PSC descriptive exams. क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल में ICDS का एग्जाम होने वाला है, तो मेरा ये जो वीडियो ये 3 लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. If we look at our previous year questions, we'll get that many type of questions regarding women empowerment and women political empowerment has been given, or we have to answer this in details. And please stay tuned with my video and please like, share and subscribe if you like this video. বাঙালিদের জন্য বলি যে পঞ্চায়েত সিস্টেম, গ্রামের যে পঞ্চায়েত সিস্টেম আছে সেখানে ওমেনদের কি রোল আছে, তাদের অবদান কি আছে মহিলাদের, এটা কিন্তু একবার WBCS কোয়েশ্চেন পেপারে এসেছিল মেনে. তো তোমরা এটা পড়ে রাখবে বিকজ এটার একটা আসার সম্ভাবনা আছে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট সেকশনে. এছাড়াও পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন মানে রাজনৈতিকভাবে কিভাবে মহিলাদেরকে এম্পাওয়ার করা হচ্ছে, মহিলাদেরকে কিভাবে স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে বা স্বাধীনতা কেউ হস্তক্ষেপ করছে কি না, এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স, এটাও কিন্তু পড়ে রাখা দরকার. रोल ऑफ वुमेन इन रूरल पंचायत, ये एक बार UPSC के मेन में आया था, एंथ्रोपोलॉजी मेन में. एंड ऑल्सो ये GS पेपर में भी, मेन की जो GS डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें भी एक बार आया था. तो रूरल पंचायत का जो अभी वुमेन का जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले इंट्रोडक्शन के तौर पर हमको पंचायती राज सिस्टम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा. 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 3 টিয়ার পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম আমাদের ভারতবর্ষে আনে. এটা গান্ধীয়ান প্রিন্সিপাল DPSP মানে ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি আর্টিকেল 40-তে পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমের মেনশন করা আছে. পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম ওয়াজ এস্টাবলিশ টু এম্পাওয়ার দ্য সেলফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ লোকাল গভর্নমেন্ট. এই যে পঞ্চায়েত রাজ সিস্টেম, এই যে পঞ্চায়েত সিস্টেম বা মিউনিসিপ্যাল, এদেরকে লোকাল গভর্নমেন্ট বলা হয়. তো এদেরকে এম্পাওয়ার করার জন্য, এরা যেন ভালোভাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিজেরাই করতে পারে, এর জন্য পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমটাকে কিন্তু এস্টাবলিশ করা হয়েছিল. আর কি করবে, পাওয়ারটা যেটা সেন্ট্রালের কাছে যে পাওয়ারটা আছে সেটাকে যেন ডিসেমিনেট করার জন্য এই পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমটা বানানো হয়েছে. মানে পাওয়ারটা যেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ভালো করে ছড়াতে পারে, এর জন্য এটাকে বলা হয় ডিসেন্ট্রালাইজেশন. এটা করার জন্য কিন্তু পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমটাকে বানানো হয়েছে. বলবন্ত রায় মেহতা কমিটির আন্ডারে পঞ্চায়েত রাজ সিস্টেম ভারতবর্ষে দারুণভাবে চলে আসে. ওমেন ওয়ার গিভেন 33% সিট রিজার্ভেশন ইন पंचायत ऑफ इंडिया. মানে 33% মানে 1/3 ऑफ द टोटल मेजॉरिटी सीट যেটা সেটা पंचायत सिस्टम में वुमेनরা পাচ্ছে. तो अगर पूछा जाए कि 3 टियर पंचायत सिस्टम कहाँ से आया है, तो ये हम कह सकते हैं कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया है. ये कहाँ था, DPS मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 40 में, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल है. यहाँ पर 3 टियर पंचायत सिस्टम का एक उल्लेख किया हुआ है. और ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये किस लिए बनाया गया था, ताकि लोकल गवर्नमेंट जो है वो सेल्फ एम्पावर्ड या सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए. तो ऊपर के स्तर से पावर नीचे के स्तर पर आ पाए, जैसे कि सेंट्रल का जो पावर है वो डिसेमिनेट हो पाए बाकी स्टेट्स या लोकल गवर्नमेंट में. इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, जो भी इसका मोटिव था. कौन से कमेटी ने ये पंचायत राज सिस्टम प्रपोज किया था, वो है बलवंत राय मेहता कमेटी. और इस पंचायती राज में 33% सीट रिजर्वेशन किसको दिया गया है, वुमेन को. अब चलते हैं मेन बॉडी में. तो मेन बॉडी में फर्स्ट हम लिखेंगे कि रोल ऑफ पंचायत इन PRI मतलब कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. तो पंचायती राज में वुमेन का क्या रोल है ये यहाँ पर बताना है. রাজনীতিতে ওমেনরা যেন পার্টিসিপেট করতে পারে, ওদের একটা গ্রেটার পার্টিসিপেশন হয় পলিটিক্যালি, এর জন্য কিন্তু রুরাল ইন্ডিয়াতে वुमेनদের पंचायते ही सीट रिजर्वेशनটা করা হয়েছে. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वुमेन का और बढ़ पाए, एक्सपैंड हो पाए, इसीलिए वुमेन को ये लोकल गवर्नमेंट में एक हिस्सा बनाया गया है, इसीलिए इसको सीट रिजर्व रखा गया है. अगर एक औरत पार्टिसिपेट करी है तो ये क्या करेगा, बाकियों को इंस्पायर करेगा, बाकियों को मोटिवेट करेगा कि वो भी रूरल या अर्बन वुमेन जो भी हो वो भी पार्टिसिपेट करे पॉलिटिक्स में. इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन रूरल डेवलपमेंट, আগেরটা ছিল কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন, এখানে হচ্ছে রুরাল ডেভেলপমেন্টের পার্টিসিপেশন.
মানে হচ্ছে তোমার যদি গ্রামের অনেক রকমের ডেভেলপমেন্ট হয়, যেরকম উন্নতি যেগুলোকে বলা হয়, যেরকম রাস্তা তৈরি করা, তারপরে গর্ত ভরা, তারপরে হচ্ছে পুকুর তৈরি করা, কল বসানো, এগুলোকে বলা হয় রুরাল ডেভেলপমেন্ট। এইগুলোতে যেন ওমেনরা পার্টিসিপেট করতে পারে, ওমেনরাও এর মধ্যে আসতে পারে, ওরাও যেন লিডারশিপ একটা দেখাতে পারে এখানে, এর জন্য কিন্তু একটা सीट रिजर्व करा एक खूब गुरुत्वपूर्ण विषय। गांव के डेवलपमेंट में वुमेन का जो हिस्सा है, वुमेन का जो रोल है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे रास्ते बनाना या जो भी मनरेगा का काम होता है, वो सारे रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, और यहाँ पर भी वुमेन का एक बढ़ चढ़कर हिस्सा सरकार मांगती है। गांव के उन्नति के लिए जो सबसे बड़ा योगदान रहता है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो वुमेन लोग का एक ग्रुप होता है। देखना आप लोग देखोगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कुछ होते हैं जहाँ पर उन लोग ही लोन्स देते हैं सारे छोटे मोटे उद्योग को। तो ये सब भी क्या है, रूरल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो एसएचजी का जो इम्पोर्टेंस है वो भी आपको बताना पड़ेगा। महिलारा যত বেশি পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন রাখবে তত বেশি আমরা করাপশন আর মাসেল পাওয়ারটাকে কমাতে পারবো। করাপশন মানে হচ্ছে যেগুলো ঘুষ নেওয়া হয়, এই ব্যাপারটা আমরা কমাতে পারবো। আর মাসেল পাওয়ার আছে যেগুলো দেখবে অনেক পার্টির মধ্যে গুন্ডা থাকে, গুন্ডামি করে অনেক কাজ হাসিল করা হয়, সেই জিনিসগুলো অনেক কম হবে যখন ওমেন পার্টিসিপেশন পলিটিক্যাল সেক্টরে বাড়বে। करप्शन और मसल पावर को ख़त्म करने के लिए वुमेन पार्टिसिपेशन पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि करप्शन का एक चेन रहता है, मेल पॉलिटिशियन जो है वो एक चेन की तरह से नीचे से ऊपर जो पॉलिटिकली पैसा जाता रहता है, इसको कम करना पड़ेगा और इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। मसल पावर जैसा कि होता है, हुलिगन्स रहते हैं बहुत सारे पार्टी में, गुंडे रहते हैं, गुंडे मवाली रहते हैं, तो वो भी पार्टी के जो आइडियोलॉजी है उसको ख़राब कर देते हैं, पार्टी के रेप्यूटेशन को ख़राब कर देते हैं। तो वुमेन जितने आएंगी तो ये मसल पावर भी कमता नजर आएगा। অনেক সময়টা দেখা গেছে যে মহিলাদেরকে এগোতে দেওয়া হয় না পলিটিক্যালি, মানে সমাজ চায় না যে মহিলারা কোনো নেতৃত্ব নামক একটা কোনো জিনিস করুক। তো এটাও একটা সোশ্যাল চেঞ্জ হিসেবে কাজ করবে যখন वुमेनরা पार्टिसिपेशन রাখবে पॉलिटिकली। कहीं कहीं सोसाइटी में ऐसा देखा जाता है कि सोसाइटी नहीं चाहती है कि वुमेन सरपंच बने, ठीक है, वुमेन मुखिया बने, ये नहीं चाहती है। तो ये समाज का भी एक सोशल चेंज होगा जब ये वुमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिकली बढ़ेगा। ये एक समाज में एक अलग सा रिफॉर्म लेकर आएगा। सेंसिबल एंड इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। तो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं लड़कियों के या महिलाओं के जो कि एक महिला ही समझ सकती है, महिलाएं उसको दूर कर सकती है, या कोई महिला कोई विक्टिम है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी चीज़ की जो रूरली बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो एक वो चाहती है कि एक कंफर्टेबल जोन एक महिला को जाके बोले। तो अगर हमारे पॉलिटिकली सरपंच अगर कोई महिला है या पॉलिटिकली कोई महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही है तो फिर वो क्या करेगी, एक नेता के हिसाब से काम करेगी, जो कि बाकियों को मोटिवेट करेगी, बाकियों को इंस्पायर करेगी, বাকিও কে দর্দ কো সমঝেগি। এই গ্রাম্য পরিবেশে যেখানে অশিক্ষিতর হারটা বেশি, সেখানে এরকম দেখা গেছে যে অনেক মহিলারা অত্যাচারিত হচ্ছে, অনেক রকমভাবে অত্যাচারিত হয়। তো যখন একটা পলিটিক্যালি একটা আমার নেতা যখন আমার মহিলা আছে বা পলিটিক্যালি আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার যে মানে গ্রামের যে হেড সে মহিলা, তখন আমি কি করব, একটা কমফোর্টেবল জোন আমি পাবো যে আমি তাকে গিয়ে আমার কষ্টটা বা আমার দুঃখটা আমি গিয়ে বলতে পারবো। তো সেখানে একটা মহিলার কথাটা মহিলাই ভালো করে বুঝতে পারবে, এইটা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যখন ওমেন পার্টিসিপেশন ইন পলিটিক্যালি বাড়ছে। अब देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ये वुमेन फेस करते हैं जब वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अपना रखते हैं। কি সমস্যার মধ্যে দিয়ে এই মহিলারা যায় যখন তারা অ্যাক্টিভলি এই রাজনীতিতে পার্টিসিপেট করে, এটা আমরা এখন দেখব। तो सबसे पहला आता है लैक ऑफ एजुकेशन और पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द रूरल वुमेन। अगर एडुकेशन ना हो, पॉलिटिकल अवेयरनेस ना हो रूरल वुमेन में, जो कि पॉलिटिकली चाहती है पार्टिसिपेट करना या सरपंच बनना या ग्राम सभा अटेंड करना, उनके पास अगर एडुकेशन ही नहीं है तो वो पॉलिटिकली जो सेंट्रली जो सारे स्कीम्स पास हो रहे हैं, जो पॉलिसीज़ पास हो रहे हैं, वो मतलब बाहर के जो वुमेन सिटीज़न हैं उन पर वो कैसे पहुंचाएगी, ठीक है, विलेज में कैसे वो फैलाएगी, तो इंस्पायर कैसे करेगी। तो इसी कारण जो है एजुकेशन और पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होने के कारण ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी इनका रुक जाता है।
যারা পলিটিক্যালি পার্টিসিপেট করবে, এই মহিলারা যারা রাজনীতিতে পার্টিসিপেট করবে, তারা যদি রাজনীতি সম্বন্ধেই না জানে বা তাদের যদি কোনো পড়াশুনো না থাকে, তাহলে তারা কিভাবে রাজনীতিতে পার্টিসিপেট করবে? আমাদের ইন্ডিয়ান ভিলেজ বা গ্রামগুলোতে দেখা গেছে যে এডুকেশনের বা পলিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস কিন্তু মেয়েদের মধ্যে খুবই কম। তাহলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট হলো অ্যাক্টিং অ্যাজ এ প্রক্সিস অফ মেল পলিটিশিয়ান। যারা মেল পলিটিশিয়ান আছে তাদের প্রক্সি হয়ে কাজ করা, মানে তাদের সাবস্টিটিউটে কাজ করা, মানে মেল পলিটিশিয়ানরা যা বলবে ওমেনকে আর কি সামনে দাঁড় করিয়ে রাখবে, কিন্তু আসল কাঠিটা হচ্ছে মেল পলিটিশিয়ানসরাই নাড়াবে। তো এইটাই হচ্ছে একটা খুব বড় प्रॉब्लम वोमेनरा फेस করছে। तो मेल पॉलिटिशियंस जो होता है ये वोमेन को प्रॉक्सी के हिसाब से यूज़ करते हैं, मतलब कि सब्स्टिट्यूट ऑफ मेल पॉलिटिशियन, मतलब कि काम जो है वो जो पॉलिसी मेकिंग है, वो डिसीजन मेकिंग है, वो सारे मेल पॉलिटिशियन करेंगे, पर रिप्रेजेंटेटिव जो खड़ा करके रखा है वो कोई वोमेन है, मतलब कि दिखाने के दांत और खाने के दांत और। दिस इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम इन पैट्रियार्कल डोमिनेटेड सेक्टर। তারপর যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে হাজব্যান্ডসের খুব ইন্টারভেনশন থাকে তাদের পলিটিক্যাল বা সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ডিসিশন টেকিংয়ে। মানে যখন একটা নেতা বা যখন একটা মহিলা নেতৃত্ব করছে, তাকে তো ডিসিশনসগুলো, পলিসি মেকিংগুলো সব কিছু নিজেকে করতে হবে, কিন্তু সেখানে যদি কোনো গার্জিয়ান, তার কোনো পুরুষ গার্জিয়ান, সে যদি ইন্টারফেয়ার করে, তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু খুব বায়াসড হয়ে যায়। তো এটাও একটা খুব বড় প্রবলেম। जो हस्बैंड का इंटरवेंशन होता है, जो उनकी जो वाइफ पॉलिटिकल या सोशल डेवलपमेंट डिसीजन लेती है, जो कि उनकी वाइफ अगर समझ लो कि पॉलिटिकली वो एक्टिव है, तब ये जो इंटरवेंशन होता है ना, इसके वजह से क्या होता है, उनका जो डिसीजन होता है वो बहुत बायस्ड हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि वुमेन पॉलिटिशियंस जो है वो फेस करते हैं। সমাজরা অনেক জায়গায় মেনে নিতে চায় না, তারা নেগেটিভ অ্যাটিটিউড শো করে, তারা কোয়েশ্চেন করে যে কীভাবে একটা ওমেন একটা নেতৃত্ব করতে পারে, এটা কোনো তাদের মধ্যে তাদের কোনো ক্যাপাসিটি নেই, তাদের কোনো এবিলিটি নেই। এরকম এবিলিটি নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়, মহিলাদের এবিলিটি নিয়ে, মহিলাদের ক্যাপাসিটি নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। অনেক সোসাইটি এরকম আছে, অনেক রুরাল সোসাইটি এরকম আছে, তাদের প্যাট্রিয়ার্কাল বা অর্থোডক্স চিন্তাভাবনার কারণে তারা উঠতে পারে না, নিজেদের এই ভাবনা চিন্তাভাবনা থেকে আরও বিয়ন্ডে যেতে পারে না। बहुत सारे गाँव में ऐसा देखा गया है, भारत के गाँव में, अगर आप हरियाणा या राजस्थान या पंजाब के गांव में भी देखेंगे तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मिलेगा कि ऐसे सोसाइटी का ऐसा एक नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, ये क्वेश्चन करते हैं वुमेन के एबिलिटी के ऊपर कि वुमेन सरपंच नहीं बन सकती, वुमेन किसी को लीडर नहीं कर सकती, लीडरशिप क्या करेगी वुमेन। तो ये जो एक नेगेटिव एटीट्यूड या क्वेश्चनिंग एटीट्यूड सोसाइटी का बन जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वुमेन के पास कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं रहता है, लैक ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस। पॉलिटिकल ट्रेनिंग तो रहता ही नहीं है और एक्सपीरियंसेस भी ज़्यादा वुमेन के पास नहीं रहता है कि कैसे क्या करते हैं, पॉलिटिक्स क्या होता है, क्योंकि वो तो ज़्यादातर डोमेस्टिक काम्स में बिजी रहती हैं, तो उनके पास कहाँ से ये एक्सपीरियंसेस आएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। কীভাবে রাজনীতির জিনিসগুলোকে সামলাতে হবে, এই যে ট্রেনিংটা বা কোনো এক্সপিরিয়েন্স, রাজনীতি নিয়ে কোনো এক্সপিরিয়েন্স, এইগুলো মেয়েদের মধ্যে, মানে গ্রামের মেয়েদের মধ্যে সেরকম ব্যাপার দেখা যায় না, কারণ তারা বেশিরভাগ সময়টাই বাড়ির কাজে ব্যস্ত থাকে, এর জন্য তারা পলিটিক্যালি এই এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে গ্যাদার করতে পারে না। এটাও একটা খুব বড় প্রবলেম যারা ওমেনরা ফেস করে। যারা আইসিডিএস সুপারভাইজার এক্সাম দিচ্ছ তাদের জন্য বলে দিই, এতটুকু লিখলে যথেষ্ট, এর বেশি আর লাগবে না। और बाकी जो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स है उनके लिए बता दूं कि इतना काफ़ी है, इसके बाद आप कंक्लूजन ऐड करोगे तो आपका पूरा एकदम कम्पैक्ट हो जाएगा। और अब चाहो तो कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर जो वो एनरिच्ड होता है। और यहीं पर मेरा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।